लेट स्टार्ट केस सिनेरियो नंबर 6। प्लान रीडिंग मार लेते हैं। रिलेवेंट पोर्शन अगर एमसीक्यू में लगा तो हम ऊपर आगे चेक कर लेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट एमसीक्यू करते हुए चलेंगे। बाकी हम एक बार रीडिंग मार लेते हैं ताकि क्या है ना कि थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज कहाँ पर लिखी है। Comtech Limited, a top 1000 listed entity on a BSE by market capitalization of the past 2 years, sells IT and related equipment directly to consumers through its website. One day, the CFO of a company received a video call from a managing director (MD). CFO है उसके पास MD का कॉल आया, instructed him to transfer 90 lakh to the bank account of NXP Limited। भाई साहब, 90 लाख रुपए ट्रांसफर करने किसी बैंक अकाउंट में। When questioning by CFO, the managing director explained NXT products are fast moving and contribute 30% of a company revenue. Further, the amount of a payment is within the approved limit and can easily be remitted without any further approval. Satisfied with the explaining, the CFO made his necessary transfer. इसने पूछा कि क्यों डालने हैं, तो उसने बताया कि फास्ट मूविंग है, कंट्रीब्यूट फास्ट मूविंग कंपनी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे 30% रेवेन्यू के अंदर, तो हमें इसको पेमेंट करना 90 लाख का, तो फटाफट ट्रांसफर कर दो। और भाई एकदम सीएफओ साहब भी अपने क्या ही रेडी हो गए पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, और उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ, while preparing the bank reconciliation, the CFO realized that the five incremental payment of 90 lakhs each had made to NXT Limited। एनएक्सटी लिमिटेड को 99 लाख के 5 बार पेमेंट गए हैं। दिस पेमेंट वर अनरिकंसाइल्ड। ये पेमेंट अनरिकंसाइल्ड मतलब रिकंसाइलेशन नहीं हो पा रहा है इनका, पता नहीं चल रहा है। एंड डू नॉट हैव एनी corresponding entry in the books of account। The CFO explained the situation that the MD, reminding him over the video call that had instructed him to make such payment। However, the MD denied making any such video call। देखा, सीएफओ ने याद दिलाया कि आपने वीडियो कॉल करके मुझसे कहा था पेमेंट डालने के लिए, पर एमडी ने बोल दिया कि मैंने तो कोई वीडियो कॉल लगाया ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं साइबर रिस्क का आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द सीएफओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंगेज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट हु ऑब्जर्व्ड दैट द कंपनी हैड साइबर अटैक। ठीक है भैया, साइबर रिस्क हमको पता चल गई थी। अंडर सोफिस्टिकेटेड एआई टूल्स, investigation further revealed that a video call to the CFO was fake and made from the laptop not owned by the company. The hackers have gained access to the CFO laptop and have obtained bank details and its authorization information. The company filed a police complaint and reported the incident to the appropriate authorities. During the risk assessment process, the auditor of the company determined that the IT environment poses a significant risk. The auditor assessed that the principal financial system that is in preparation of financial statement were compliant during the cyber attack. The auditor also focused on the judgment made by management related to the non-security incident. The auditor made inquiries with the risk management team and with the chief information officer to understand their assessment on the cyber security risk and the measure in place to mitigate the risk. Focusing on the principal financial statements used in the preparation of the financial, the auditor also communicated with TCWG about the cyber incident. After completion of necessary procedure, the auditor felt that it had incurred additional efforts to the tune of 20%. The auditor reviewed with the assistance of specialist management assessment of the potential impact on the principal financial system used in the preparation of the financial statement. The management of a company was imposed by the level of detail and diligence employed by the auditor while dealing with the cyber security incident. They particularly appreciated in-depth knowledge of the auditor, timely involved IT specialist by the auditor, and experience in dealing with cyber security incident. The management felt that the auditor would be the right fit to conduct a thorough audit of IT system। भाई साहब, मैनेजमेंट को ऑडिटर को देख रहा और उसको लग रहा है कि यार इतनी तगड़ी ऑडिट कर रहा है, तो हमारे आईटी के लिए भी ये बंदा बहुत शानदार रहेगा, हम अपने आईटी में भी इसी बंदे को लेके आएंगे जो कि हमारा स्टेचुटरी ऑडिटर्स है। The management felt that the auditor would be the right fit for conducting thorough audit of IT systems of the company। IT systems की ऑडिट के लिए भी यही बंदा अपने काम में आएगा। In order to leverage the auditor expertise, the management proposed to engage the auditor to conduct the system audit। मैनेजमेंट ऑडिटर को कह रहा है कि आप हमारी सिस्टम ऑडिट भी करके दे दो। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं लास्ट पेज अपना। द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी बिलीव दैट द
Integrated reporting as prescribed by the International Integration Reporting Council should be prepared by the management. स्टेक होल्डर चाहते हैं कि बिहार ऐसा रिपोर्ट बने. The primary purpose was to explain to provide the financial capital, how the company creates, preserves, and erodes value over time. The integrated report would provide relevant information, both financial and other, for the benefit of all stakeholders interested in the company's ability to create value over time, including employees, customers, suppliers, business partners, local community, legislatures, regulators, and policy makers. ठीक है, कैसे स्टडीज में पूरी हो गई है. अब क्या समझ में आया क्या नहीं आया, अब कोई लोड वाली बात नहीं है. एक बार एमसीक्यूज पढ़ते हैं, अगर कुछ रिलेवेंट डिस्कशन होगा तो अपन कर लेंगे. तो पहला एमसीक्यू है, इन द गिवन केस साइबर अटैक इनकाउंटर्ड बाय द कंपनी इज नोन एज. कौन सा साइबर अटैक? आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ. अपना साइबर अटैक ये रह गया, ये वाला साइबर अटैक. वन डे द सीएफओ रिसीव्ड अ कॉल. भाई साहब ये तो कहीं ना कहीं स्पूफिंग वाला काम हो गया है. स्पूफिंग याद है, डोमेन स्पूफिंग होता था जैसे फेसबुक, वैसे ही इधर भाई साहब का फोटो ही स्पूफिंग हो गया है. फर्स्ट वाले का आंसर है स्पूफिंग, क्योंकि क्या है ना कि किसी और ने उनकी जगह पे उस एमडी की जगह पे वीडियो कॉल कर दिया है और सीएफओ को और पेमेंट डलवा लिया है. सेकंड, the engagement partner is confused as to whether the audit report would be impacted by the cyber attack instance. ऑडिट रिपोर्ट अफेक्ट तो क्या होगी? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन? अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या है? फर्स्ट पढ़ लेते हैं. नो implication of audited report since the financial loss has already been recognized in the financial statement. मतलब कोई implication नहीं देना है, गलत है. Qualify audit opinion as the amount of loss due to cyber is incremental and does not emanate from its operating activity. गलत है. Include EOM पैरा. EOM पैरा या फिर की ऑडिट मैटर. देखो की ऑडिट मैटर वो वाले मैटर्स होते हैं जो कि टीसीडब्ल्यूजी को अपन कम्युनिकेट कर देते हैं और उसमें भी हमको मोस्ट सिग्निफिकेंट लगते हैं तो हम उसको काम में डालते हैं एसी 701 के हिसाब से. तो हमने कहीं पे अभी पढ़ा था कि अपन ने ये मैटर्स, द ऑडिटर ऑल्सो कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी अबाउट द साइबर इंसिडेंट. ये देखो, तो ये हमने क्या है ना टीसीडब्ल्यूजी से भी मैटर कंसल्ट कर दिया और हमको लग रहा है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है. तो हमारे लिए इसका आंसर है डी. The report as a key audit matters since the cyber incident was the most significant in the audit of a financial statement of a current period. Current period की audit के लिए बहुत most significant matter है. फिर थर्ड कहा है अपने, the company wants to prepare an integrated reporting as contained in the International Integrated Reporting Council. मतलब एक बीआरएसआर रिपोर्ट बन रही होगी, ठीक है. And endorsed by SEBI. The company secretary is of the view. अब ये कंपनी सेक्रेटरी क्वेश्चन में कहीं नहीं आया लेकिन यहाँ पे इन्होंने डाला है तो पढ़ लेते हैं. द कंपनी सेक्रेटरी इज ऑफ द व्यू दैट द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटी. वो उसका ये कहना है कि मैंडेटरी है ये लिस्टेड एंटिटी के लिए. तो अब इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ मैं. द व्यू ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज इनकरेक्ट एज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज वॉलंटरी फॉर टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी. मैंडेटरी नहीं है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी के लिए वॉलंटरी है. और मुझे लगता है 40 में हो सकता है कुछ ऊपर नीचे, लेकिन ठीक है. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कंप्राइजेस 6 C's. 6 C's पढ़े हैं अपन ने. द कंपनी ऑब्जर्व दैट इट हैज कैपिटलाइज इंटेंजिबल असेट. इंटेंजिबल असेट्स मतलब ऑप्शन में देख लेते हैं अपन. फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? फाइनेंशियल असेट्स, पैसों को लेके. नेचुरल असेट, नेचर्स को लेके. ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमंस को लेके होती है. इंटेलेक्चुअल मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटेंजिबल असेट्स के लिए होती है. अपना आंसर यही बनेगा. और थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं. एंड रूफ टॉप सोलर इक्विपमेंट. सोलर इक्विपमेंट मतलब सोलर सोलर एनर्जी का यूज करेगा, नहीं नेचुरल कैपिटल. तो फोर्थ का अपने हो गया सी.
कैन द ऑडिटर एक्सेप्ट द ऑडिट सिस्टम ऑडिट एज अफोर्सेड बाय कमटेक लिमिटेड। देखो ऑडिटर क्या सिस्टम ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हमने ना प्रोफेशनल एथिक्स में एक चीज पढ़ी है कि अगर ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है, वहां पे अगर कोई और अदर सर्विसेज दे रहा है तो उन सब की टोटल फीस मिला के 50% से कम होनी चाहिए ऑडिट फीस के मुकाबले, ठीक है। लेकिन हमने उसके कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे, जिसमें से एक एक्सेप्शन दिया था कि वो किसी और एक्ट के अंदर ऑडिट दे सकता है, तो सिस्टम ऑडिट वही कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यस द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन एक्सेप्ट द असाइनमेंट फॉर सिस्टम ऑडिट प्रोवाइडेड इट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी स्क्रूटनी रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये बात सही है कि फाइनेंशियल डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तभी ये अपने सिस्टम ऑडिट दे सकता है। तो इसी के साथ अपनी केस स्टडी नंबर 5 की कंप्लीट।